दिल्ली में बारिश ने आज एक बार फिर रफ्तार रोक दी। हर बार मुसीबत देने वाले अंडरपास इस बार भी बारिश में दगा देने से बाज नहीं आए, क्योंकि पानी निकासी का कोई इंतजाम नहीं था। इन अंडरपासेस में डूबती उतरती गाड़ियां ये बता रही थी कि इस दिक्कत से पार पाना कितना मुश्किल है। इतना पानी कि डूबने लगी राजधानी। अंडरपास लबालब थम गए पहिए, सड़कें बनी दरिया, कदम कदम दुश्वारियां। राजधानी फिर पानी से हारी। दिल्ली के अलग अलग कोनों में ये अंडरपास लोगों की सहूलियत के लिए बनाए गए थे, लेकिन सोमवार की बारिश ने इनको दिक्कत के दरिया में तब्दील कर दिया। शायद इनको बनाते वक्त बारिश का ध्यान नहीं रखा गया था। सोमवार की सुबह आधा एक घंटे की बारिश हुई। दिल्ली के कई अंडरपास पर पानी का कब्जा होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। सबसे पहले जल भराव के लिए पहचाने जाने वाले पुल प्रहलादपुर का हाल देख लीजिए। हर बार की तरह इस बार भी बारिश में पहली बार में ही ये अंडरपास पानी के आगे दम तोड़ गया। इस अंडरपास में कई फुट तक पानी जमा हो गया। इस वक्त मैं दिल्ली के पुल प्रहलादपुर अंडरपास पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं जो ये पूरा अंडरपास है पूरी तरीके से बंद हो चुका है। भारी बारिश की वजह से जल जमाव हो गया है और नज़ारा ये है कि सड़कों पर इस भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जो कूड़ा है वो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। और अंडरपास पर जो एक प्राइवेट बस है वो पूरी तरह से फंस चुकी है और डूब चुकी है। ये नज़ारा है। हर साल बारिश की वजह से इसी तरीके से पुल प्रहलादपुर जो अंडरपास है वो पूरी तरह से डूब जाता है। और अगर आप देखें तो हमारे घुटनों की तरफ पानी है। दूसरी तरफ अगर आप देखें जो बस स्टॉप है वो भी पूरी तरीके से डूब चुका है। ये जो सड़क है ये गुरुग्राम की तरफ जाती है, बदरपुर को जोड़ती है, फरीदाबाद को जोड़ती है, लेकिन आप देखेंगे अगर सड़क वो दरिया में तब्दील हो चुकी है। पूरी तरीके से जो अंडरपास है वो बंद हो चुका है। एक ट्रैक्टर वो जो यहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहा था वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। तो कुछ इस तरीके का नजारा है और हर साल यही हालत होती है इस अंडरपास की। सुबह ही अंडरपास को बंद करना पड़ा और लोग जहां के तहां फंसे रह गए। अंडरपास में कई गाड़ियां खराब हो गई जिनको क्रेन के जरिए बाहर निकाला गया। और इस वक्त सीधे आपको ले चलते हैं लोकसभा, जहां पत्रकारों के फोन टैपिंग का मामला संसद में उठा है। The presence of a phone number in the data does not reveal whether a device was infected with Pegasus or subject to an attempted hack. Without subjecting the phone to this technical analysis, it is not possible to conclusively state whether it witnessed an attempted hack or was successfully compromised. Honorable Speaker, sir, the report itself clarifies that presence of a number in the list does not amount to snooping. Honorable Speaker, sir, now let us examine what the NSO, the company which owns the technology, has said. I quote, NSO Group believes that claims that you have provided with are based on misleading interpretation of leaked data from basic information such as XLR lookup services which have no bearing on the list of the customers targets of Pegasus or any other NSO product. Such services are openly available to anyone, anywhere and anytime, and are commonly used by governmental agencies as well as by private companies worldwide. It is beyond dispute that the data has nothing to do with surveillance or with NSO, so there can be no factual basis to suggest that a use of the data somehow equates to surveillance. I highlight, sir, NSO has also said that the list of countries shown using Pegasus is incorrect. And many countries mentioned are not even our clients. It also said that most of its clients are Western countries. It is evident, Honorable Chairman, sir, Speaker, sir, that NSO has also clearly rubbished the claims in the report. Honorable Speaker, sir, let us look at India's established protocols.
when it comes to surveillance. I'm sure my colleagues in the opposition who have been in government for years are very well aware of these protocols. Since they have governed the country, they would also be aware that any form of illegal surveillance is not possible with the checks and balances in our laws and robust institutions. In India, there is a well-established procedure through which lawful interception of electronic communication is carried out for the purpose of national security, particularly on the occurrence of any public emergency or in the interest of public safety by agencies at the center and the state. These requests are the requests for these lawful interception of electronic communication are made as per the relevant rules under the provisions of Section 5(2) of the Indian Telegraph Act 1885 and Section 69 of the Information Technology Act 2000. Each case of interception, Honorable Speaker Sir, is approved by the competent authority. These powers are also available to the competent authority in the state government as per the IT Procedure and Safeguards for Interception, Monitoring and Decryption of Information Rules 2009. There is a very well-established oversight mechanism in the form of a review committee headed by the Union Cabinet Secretary. In case of a state government, such cases are reviewed by a committee headed by the Chief Secretary concerned. The law also provides an adjudication process for those people who are adversely affected by any such incident. The procedure, therefore, ensures that any interception or monitoring of any information is done as per due process of law. The framework and institutions have withstood the test of time, Honorable Speaker Sir. In conclusion, I humbly submit that the publisher of the report states that it cannot say if the numbers in the published list were under surveillance. Second, the company whose technology was allegedly used has denied these claims outrightly, and the time-tested procedures of our country are well established to ensure that unauthorized surveillance cannot occur. Honorable Speaker Sir, when we look at this issue through the prism of logic, it clearly emerges that there is no substance whatsoever behind this sensationalism. Thank you, Honorable Speaker Sir. माननीय सदस्यगण, सरकार ने भी कहा है कि वह हर विषय, हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि आप जनहित और देशहित के मुद्दों को उठाएं, चर्चा करें तो उचित रहेगा। यही संसद की मर्यादा है। सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 20 जुलाई 2021 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो सीधे कार्रवाई आपको यहां संसद से हम दिखा रहे थे, जहां पर फोन टैपिंग के मामले को लेकर जबरदस्त हंगामे की स्थिति रही, लेकिन संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीधे सीधे तमाम आरोपों को खारिज कर दिया कि सरकार किसी भी तरह की कोई टैपिंग करवा रही थी या जासूसी का यहां पर कोई भी मामला था। सरकार की तरफ से कहा गया कि पहले ही इसे लेकर नियम काफी सख्त हैं और उन्हीं नियमों का पालन किया गया। और उसके बाद आपको बता दें, सदन की कार्रवाई अब कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। रुक करते हैं अगली खबर का। बात अब देश की राजधानी दिल्ली की, जो जल भराव की दिक्कतों से जूझती हुई आज के दिन नजर आई। सिविक एजेंसीज पर तरह तरह के आरोप लगे कि क्यों आखिर लोगों को हर बार मानसून में इस तरह जल भराव की दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में सोमवार की बारिश ने एक बार फिर से सारे सरकारी इंतजामों को धोकर रख दिया। सुबह 5 बजे से रिमझिम का जो सिलसिला शुरू हुआ तो एक एक करके दर्जनों सड़कें जल भराव की गिरफ्त में आती गईं। मुसीबत का दायरा बढ़ता चला गया और थमती गई रफ्तार। दिल्ली का कोई कोना नहीं बचा जहां जल भराव ने लोगों की आफत में इजाफा नहीं किया हो। दिल्ली के जो इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, इनमें महिपालपुर, एयरपोर्ट, पुल प्रहलादपुर, मुनीर का मथुरा रोड, एम्स, तिगड़ी, लाजपत नगर शामिल थे। दिल्ली के सबसे बिजी चौराहे आईटीओ का हाल देखिए। इतना पानी जमा हो गया कि ट्रैक्टरों पर लगे पानी निकालने वाले पंप लगाने पड़े। सड़क पर 1 से 1.5 फुट पानी जमा था और कई घंटे तक पंप चलाने के बाद भी ये पानी नहीं निकल पाया। और आईटीओ से चंद कदम आगे दीनदयाल उपाध्याय रोड का रुख किया
तो हमें पानी भरने के साथ पेड़ गिरने की दिक्कत से रफ्तार रुकती दिखी। हाई प्रोफाइल एरिया में बारिश ने लोगों की आवाजाही को काफी मुश्किल बना दिया। इस वक्त मैं दिल्ली के ITO पर मौजूद हूं और अगर आप हमारे सामने ये देखें तो ये भारी भरकम जो पेड़ है वो बारिश की वजह से सड़क पर आ गिरा है। और ये जो सड़क है ITO की, ये दीनदयाल उपाध्याय रोड की तरफ जाती है जहां बीजेपी का दफ्तर भी है। तो ये जो पूरी सड़क है, अगर कनॉट प्लेस की तरफ से आप आते हैं तो ये पूरी तरह से सड़क जो है बाधित हो चुकी है। दिल्ली NCR की बात करें तो बीती रात से ही जमकर बारिश हो रही है, जहां इस बारिश से दिल्ली NCR के लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिल रही है। तो वहीं आफत भी आई है सड़कों पर, जगह जगह वाटर लॉगिंग हो गया है, जिस वजह से लोगों को दफ्तर जाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप इस पेड़ को देखें तो बारिश की वजह से ये पेड़ गिरा है, जिस वजह से ये पूरा का पूरा रूट जो है वो बाधित हो चुका है। पालम इलाके में बाकी इलाकों से कुछ ज्यादा बारिश हुई और नतीजा ये कि हर कॉलोनी में तालाब जैसा नजारा दिखा। देखिए कैसे बस स्टैंड के आगे कई फुट तक लबालब पानी भरा था। इसी पानी में उतरकर लोगों को बस पकड़ने की मजबूरी है। बारिश से कई दोपहिया खराब हो गए। साउथ दिल्ली का रुख भी कर लीजिए, जो बारिश से बेहाल दिखी। हर पॉश कॉलोनी में पानी भरने की दिक्कत सामने आई। मेन रिंग रोड और आउटिंग रिंग रोड दोनों पर पानी ने कब्जा जमा लिया। मुनिरका से लेकर बेरसराय तक हर जगह सड़क पर पानी भरा था। यही हाल एम्स फ्लाईओवर का था। कई फुट जमा पानी के बीच से ही गाड़ियां गुजरती दिखी। और दिल्ली के चंद बड़े बाजारों में शुमार लाजपत नगर की तरफ जाने वाली सड़कें देखिए कैसे तालाब बन गई है। दूर तक सिर्फ पानी है और इसी से होकर बसें और कारें गुजर रही हैं। मथुरा रोड पर भी पानी भर गया। कई ऑटो इस पानी में फंसकर खराब हो गए। दिल्ली की इस चंद अहम सड़कों में शुमार मथुरा रोड पर हालात काफी खराब दिखे। टिकरी इलाके का हाल देखिए, वही मुसीबत। कई फुट का पानी आवाजाही को मुश्किल बना रहा था। सड़क पर जमा पानी में ये बाइक सवार गिरते गिरते बचे। आज तक ब्यूरो। एक बार फिर दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सुबह की बरसात ने किस तरह की मुश्किलें अलग अलग इलाकों में पैदा की। पानी भर जाने से लोगों को दिक्कत होती रही। ट्रैफिक की रफ्तार भी सुस्त दिखाई दी। कई इलाके दिल्ली के ऐसे जो पानी में डूबे रहे। हालात ये थे कि कई जगह पानी में बसेस और कार डूबी हुई दिखाई दी। दिल्ली के नजदीक जो बाकी इलाके हैं NCR के, वहां भी लगभग ऐसे ही हालात थे। और आइए अब आपको मुंबई की तस्वीरें दिखाते हैं। जमकर बरसात यहां हुई, कई इलाकों में पानी भर गया तो दर्दनाक हादसों में 32 लोगों की मौत हो गई। आज भी तेज बारिश का खतरा है। चेंबूर में 19 और विक्रोली में 10 लोगों की मौत हुई। फिलहाल हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। देखते रहिए आज तक।